Good morning students. Today we study class 9th subject maths, and in 9th class in math subject chapter is polynomial. Chapter name is polynomial. What is polynomial? Polynomial is Greek word. Polynomial is the Greek word. Polynomial made by two words, poly and nomial. Poly plus nomial. So polynomial is the English word which made by two Greek words. Polynomial is the English word. Polynomial is the English word. This is made by two Greek words. Poly and nomial are Greek words. Poly and nomial are Greek words. Poly means many. Poly means many and nomial means terms. Poly means many and nomial means terms. So in simple words, polynomial is the English word which made by two Greek words. Which two Greek words? First is poly and second is nomial. Poly means many. Poly means many. एंड नोमियल मीन्स ट्रम. इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में अपन पोलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स मीन्स क्या होगा? मोर देन वन ट्रम्स. इट मीन्स मैनी ट्रम्स. मैनी ट्रम्स आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स इन सिंपल वर्ड्स. दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड. दिस इज ओनली एंड इन सिंपल वर्ड्स. सो पोलिनोमियल इज द इंग्लिश वर्ड. And polynomial is made by two Greek words. Greek words are poly and nomial. Poly means many and nomial means terms. So in simple words we can say that polynomials means many terms. Okay, this is simple words. Now we see definition. What is the definition of polynomial? So first we see definition. The algebraic expression which have only one variable x and exponent of variable x are whole numbers. Such expressions is called polynomial in one variable. The algebraic expression which have only one variable x. The algebraic expressions which have only one variable x and exponent of variable x are whole number. Such expression is called polynomial in one variable. So this is the definition of polynomial. What is algebraic expression? Algebraic expression contain variable, constants, numbers, and maybe both. Algebraic expression contain numbers, variables and operators. Numbers are 1 2 3 4 5. पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. देन वेरिएबल्स x y z, these all are variables. And operators are addition, subtraction, multiplication and division. These are the operators. Okay, so for polynomials first we study some basic terms. For study polynomial chapter. So some basic definitions. First we see some basic definition. First we study some basic definition.
First is constant. First is constant. For steady polynomials, first we see some basic definitions related to polynomial. Okay, polynomial चैप्टर को आगे अपन स्टडी करने से पहले अपन कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो स्टडी करेंगे अपन, क्योंकि वो आना बहुत ज़रूरी है। उनका मीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको आना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट इज कांस्टेंट। व्हाट आर कांस्टेंट्स? कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। सपोज 1, 2, 87, 59, -59, these all are constants because number 1 have fixed value। अपन 1 को कहीं भी यूज में लें, किसी भी क्वेश्चन में यूज में लें, 1 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन्स दिस इज कांस्टेंट। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, कोई चेंजेज नहीं होगा। 87 की वैल्यू फिक्स है, 87 ही रहेगी। -59 है, -59 ही रहेगा। कब तक? जब तक आप इसमें और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करो। ओके, इट मीन्स कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज। जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। सो दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल नंबर्स एंड वी कैन आल्सो से दैट स्मॉल अल्फाबेट्स। स्मॉल अल्फाबेट्स से भी कॉन्स्टेंट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सम केसेज, फ्यू केसेज, कुछ केसेज के अंदर अपन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फाबेट्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो कॉन्स्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, स्थिर वैल्यू होती है, उनकी फिक्स वैल्यू होती है, चेंज वैल्यू नहीं होती। अपन उस नंबर को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में यूज में लें, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, सो कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। देन सेकंड, वेरिएबल्स। सेकंड बेसिक डेफिनेशन इज वेरिएबल। वेरिएबल नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल not have fixed value. Variable not have fixed values. Variables are represented by x, y, z. Variables are represented by x, y, z. So second basic term is variable. Variable not have fixed values. Some questions after solving we get x is equal to 2, other x is equal to -2, x is equal to 3, x is equal to 16, y is equal to 7, y is equal to 19. It means x, y, z are the variables. They do not have fixed values. अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में x की वैल्यू 2 आती है, कभी किसी क्वेश्चन में -2 आ जाती है, कभी x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाती है, कभी x इज इक्वल टू 16। इट मीन्स x की वैल्यू फिक्स नहीं है। x की वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। वेरी मीन्स चेंज होना। तो वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, सिमिलरली y, किसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 7 आता है, किसी में y इज इक्वल टू 19, किसी में y इक्वल टू 0, किसी में y इक्वल टू 10। सो y, वैल्यू ऑफ y इज नॉट फिक्स्ड। इट मीन्स वेरिएबल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। सो डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज क्लियर। कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय numbers and small alphabets ABC.
एंड वेरिएबल्स नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती. वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. देन नेक्स्ट इज ट्रम. Next basic definition is term. Next basic definition is term. So what is term? Term is any variable. Term is any variable, any constant, and may be product of both. Product of both. So what is term? Term is any variable, any constant, any variable, any constant, and may be product of both. It means any variable, it means x. This is term. Constant 2, this is also a term and may be product of both, it means 2x. So these all are terms. Terms is any variable, any constant and product of both. तो कोई भी टर्म है उसमें इट मीन्स उसमें सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है. दोनों का, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है. अदर एग्जाम्पल वी सी दैट 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 100 x y square z square. These all are the examples of terms. These all are the examples of term. So term is any variable, any constant and product of both. These all are the terms. Okay, term may be negative, may be positive. Suppose this have negative sign, these all are positive. Minus 2x, this is also term. Minus 100 x y square z square, this also a term. Clear? So term have any variable, any constant and may be product of both. तो term के अंदर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है. क्लियर? ओके, सो दिस इज थर्ड बेसिक डेफिनेशन, टर्म. नाउ नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन इज कोफिशिएंट्स. Coefficients. Suppose any term is 3x square y square, any term is minus 41 z square, any term is 56 x y square z cube. So coefficient is the multiple of variable, which we want to find out. Suppose we want to find out coefficient of x square in 3x square y square. We want to find out what? Coefficient of x square. ये जो टर्म है अपनी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें अपन क्या फाइंड कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है अपने को. सो विदाउट x स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके अलावा अपने पास जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट हैं वो कोफिशिएंट होगा। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 3y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in 3x square y square is equal to 3y square. Similarly, coefficient of y square in 3x square y square is equal to 3x square. Similarly, coefficient of x square y square in 3x square y square is 3. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर के अलावा इस टर्म के अंदर जो भी रिमेन है वेरिएबल कांस्टेंट जो भी उसको राइट कर दो। ये अपना 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये क्या है, टर्म है। ओके, अब कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के अलावा इसमें क्या रिमेन है, 3y स्क्वायर, तो ये 3y स्क्वायर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर के अलावा अपने पास क्या रिमेन है, वाई स्क्वायर के अलावा क्या रिमेन है यहाँ पे, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा अपने पास कांस्टेंट रिमेन है तो कांस्टेंट राइट करेंगे। तो ऐसे अपन कोई भी टर्म गिवन है उसमें इजीली कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का भी फाइंड किया जा सकता है, किसी भी कांस्टेंट का भी फाइंड किया जा सकता है। सपोज नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। अब अपन ये जो अपने पास सेकंड टर्म है, ये जो अपने पास सेकंड टर्म है -41 जेड स्क्वायर, इसमें अपन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करना चाह रहे हैं। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -41। कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर के अलावा जो भी अपने पास वेरिएबल है और उसका साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपन राइट नहीं करते, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव राइट करेंगे अपन। सो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज -41। कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज -41। क्लियर? सेम एज इन नेक्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज 56। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब अपन जो लास्ट टर्म है अपनी, इसके अंदर अपन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब का। एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब का अपने को कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 56 होगा। ओके, सपोज नेक्स्ट एनी टर्म इज एक्स क्यूब, so coefficient of x cube is, ये जो अपनी लास्ट टर्म है x क्यूब है, इसमें अपने को x क्यूब का ही कोफिशिएंट बताना है। ओके, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, 0 और 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0, नो, right answer is 1. Why? Because we can write x cube is equal to 1 multiply x cube and coefficient of x cube is 1. Coefficient of x cube is 1. x cube को अपन क्या राइट कर सकते हैं, x cube को राइट कर सकते हैं 1 multiply x cube. It means x cube का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x cube is 1. It means ऐसी कोई भी टर्म हो जिसमें ओनली वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट अपन राइट करेंगे तो वो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1। तो ऐसे अपन कोई भी टर्म गिवन है उसमें अपन कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट अपन किसी भी वेरिएबल का फाइंड कर सकते हैं टर्म में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कोफिशिएंट के साथ में आएगा, और पॉजिटिव है तो उसको अपन राइट नहीं करते, बट नेगेटिव साइन जरूर आएगा।
Next basic definition is degree. Next basic definition is degree. So degree is the highest power of variable. Degree is the highest power of variable. Degree is the highest power of variable in algebraic expression. What is degree? Degree is the highest power of variable. कोई भी algebraic expression given है या polynomial given है, उसमें डिग्री क्या होगी? उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर. वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है. तो उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो ही क्या होगी? डिग्री होगी. कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं. सपोज एग्जांपल, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 2, x square. These are the some algebraic expressions. These are the some algebraic expression. And suppose any algebraic expression is 75. These are the some algebraic expressions. We want to find out degree of algebraic expressions. Okay, so first algebraic expression is x square plus 2x plus 3. This algebraic expression have how many terms? 3 terms, first, second and 3. Okay, this algebraic expression have how many terms? 3 terms. We want to find degree of this algebraic expression. What is degree? Degree is the highest power of variable. Here variable is x. Variable is x. Highest power of variable because x have power 1 and this x have power 2. So highest power is 2. We can write here x power 1, no problem. आप यहाँ पे x की पावर 1 लिखो या ना लिखो, पावर 1 ही रहेगी इसकी. ये इसकी पावर x, यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी पावर इस टर्म में 2 है और इस टर्म में 1 है. अपने को हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट कितना हुआ? 2 हुआ. 1 और 2 में हाईएस्ट क्या होगा? 2 ही तो होगा. सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 2. बिल्कुल सिंपल है. कोई भी वेरिएबल है उसमें अपन इजीली डिग्री फाइंड कर सकते हैं. जो एक्सप्रेशन है उसमें अपन देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है. वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही क्या होगी? डिग्री होगी. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो डिग्री भी कितनी होगी? 2 होगी. ओके, नेक्स्ट x प्लस 2. x प्लस 2, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x. और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1. इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज 1. डिग्री इज 1. नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब. ओके, माइनस एक्स क्यूब इज द नेक्स्ट algebraic expression. So what is degree? The degree of this algebraic expression is 3. How many? Degree is 3 because highest power of variable. This have one variable is x. यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x है. और x की जो पावर है वो कितनी है? 3. It means degree of this algebraic expression is 3. Suppose next any algebraic expression, we can also say that term is
75 is any algebraic expression. We can also say that this is any term. We want to find out degree of 75. Okay, according to definition of degree is the highest power of variable, but this is only constant term. 75 is constant term do not have variable, but we can write in the form of variable. 75 क्या है? कांस्टेंट है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अपने वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर. बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट इसको अपन वेरिएबल की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. कैसे राइट कर सकते हैं? वी कैन राइट 75 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0. 75 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? 75 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0, बिकॉज एक्स पावर 0 इज 1. एक्स पावर 0 इज 1. एक्स पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? 1. 75 मल्टीप्लाई 1 इज आल्सो 75. इट मीन्स 75 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? 75 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0. अपने को इसको वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना था, तो अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं? 75 एक्स पावर 0. 75 एक्स पावर 0. अब अपन इजीली वेरिएबल की पावर देख के अपन इसकी डिग्री बता सकते हैं. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? x. और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0. x पावर कितनी है? 0. इट मीन्स डिग्री भी कितनी होगी? 0 होगी. कितनी होगी? 0. इट मीन्स कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, उसकी डिग्री हमेशा और हमेशा क्या होगी? 0 होगी. समझ गए? क्योंकि अपन कांस्टेंट को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एक्स पावर 0. और इस कंडीशन में अपन वेरिएबल x है, x की जब अपन पावर देखते हैं तो पावर यहाँ पे क्या है? 0. इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई. डिग्री के लिए अपन क्या देख रहे हैं? जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं. यहाँ पे अपन ने देखा वेरिएबल x था, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई. यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई. इसमें यहाँ पे अपन ने देखा x क्यूब पावर कितनी है? 3, तो डिग्री भी कितनी होगी? 3. बट ये कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल नहीं होता, तो अपन ने क्या किया? इसको वेरिएबल की फॉर्म में राइट कर लिया. 75 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0, इट मीन्स 75 एक्स पावर 0. अब अपन ने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है? 0. इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 0 होगी. इट मीन्स all constant terms have degree 0. all constant terms have degree 0. तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी. अपन इजीली अपन बता सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म की पावर, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को अपन वेरिएबल फॉर्म में राइट कर सकते हैं और उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी. इट मीन्स आप इजीली बता सकते हो मुझे -24 है, इसके लिए जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0. क्या होगी? डिग्री 0. -24 है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी? 0 होगी. अब सपोज वी वांट टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ 0. क्या फाइंड करना है? डिग्री ऑफ 0. अभी जस्ट मैंने आपको -24 के लिए आपको बताया था कि -24 जो भी कांस्टेंट्स हैं, -24 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? -24 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0 इज इक्वल टू -24 एक्स पावर 0. दैट इज इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी. डिग्री होगी वो क्या होगी? 0. अब अपन अपने को 0 की डिग्री फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? 0 की डिग्री. अब देखिए आप
इस जीरो को भी अपन वेरिएबल की पावर में राइट करें तो ये जीरो मल्टीप्लाई एक्स पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1 होगी, 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या एक्स की पावर अपन जीरो ही राइट करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में? अपने को फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट अपने को जीरो चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर अपन कौन कौन सी पावर ले सकते हैं? आप तो सिंपल ऐसे बताओ ना कि जीरो की पावर अपन जीरो के अलावा और ले सकते हैं क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंक करके बताओ। यहां पे अपन x की पावर जीरो के अलावा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं। सपोज जीरो इंटू एक्स पावर 1, एक्स पावर 1 क्या होगा? एक्स पावर 1 इज एक्स, जीरो मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स पावर 5 ले लिया आपने, जीरो मल्टीप्लाई एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 इज 5, जीरो मल्टीप्लाई एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 को अपन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अपने को आउटपुट क्या चाहिए था? जीरो ही तो चाहिए था। रिजल्ट अपने को क्या चाहिए था? जीरो। इसका मतलब ये होगा कि आप x की पावर जीरो भी ले सकते हैं, आप x की पावर 1 भी ले सकते हैं, आप x की पावर 5 भी ले सकते हैं। क्या आप x की पावर 100 ले सकते हैं? ले सकते हो। आप x की पावर 500 ले सकते हो? ले सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि x, ये जो वेरिएबल x है इसकी पावर अपन जीरो से लेकर, x की जो पावर है वो जीरो से लेकर अपन इन्फिनिटी तक जितने भी अपने पास वूल नंबर्स हैं वो सारे अपन ले सकते हैं। जितने भी अपने पास वूल नंबर्स हैं वो अपन सब ले सकते हैं। इसका मतलब इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? जीरो को जीरो मल्टीप्लाई एक्स पावर जीरो टू इन्फिनिटी, और जो जीरो टू इन्फिनिटी है ये क्या है? वूल नंबर्स। वूल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वूल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, सो वी कैन टेक एक्स पावर जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स पावर जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया कि अपन x की पावर जीरो भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, 5000 भी ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? कंप्लीट जो अपने पास वूल नंबर्स हैं वो सब ले सकते हैं। अब आप सिंपल सा आंसर मुझे आप इसकी डिग्री बता दो। आपके सामने बता दिया मैंने कि आप इस x की पावर ये राइट कर सकते हो, x की पावर आप मैक्सिमम पावर आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ जीरो। आपको मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बताना है, डिग्री ऑफ जीरो इज इक्वल टू, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली देख के बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या होगी। आप x की पावर जीरो भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, इन्फिनिटी तक ले सकते हो आप। इट मीन्स कंप्लीट वूल नंबर्स ले सकते हो आप। तो क्या होगी डिग्री? डिग्री ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो? नो, रॉन्ग आंसर। जीरो इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। अभी जस्ट इससे पहले बताया था मैंने आपको, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ओके, डिग्री ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ जीरो इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। x की हाईएस्ट पावर आप कितनी ले सकते हो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो? इन्फिनिटी तक। सो डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, वी कैन राइट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मीन्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सो डिग्री ऑफ जीरो इज इन्फिनिटी, डिग्री ऑफ जीरो इज इन्फिनिटी। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म
डिग्री ऑफ नंबर इज 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर है, 1000 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। और 0 की डिग्री कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। क्लियर? ओके। तो ऐसे अपन डिग्री फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। आपको बेसिक डेफिनेशंस मैंने इतनी बता दी, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। ओके, पोलिनोमियल मीन्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल हो और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वूल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें एक तो ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? वूल नंबर्स होनी चाहिए। इट मीन्स पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सिंपल एग्जांपल के लिए सपोज x है, दिस इज पोलिनोमियल। इफ आई राइट 2x, दिस इज आल्सो पोलिनोमियल। इफ आई राइट 3x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। x पावर 1/2, it means square root x plus 2 and 1/x plus 3, x 2x 3x square plus 2x square plus 2x minus 3, these all are polynomials because this have only one variable, this have only one variable 3x square plus 2, this is also have one variable x square plus 2x minus 3, this is also have only one variable x. Root x plus 2, this have one variable but power of variable is not whole numbers because x have power 1/2 and 1/2 is fraction. 1/2 is fraction. So square root x, it means x power 1/2. This is not polynomial. This is not polynomial. Why? Because variable do not have power whole number. वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? वूल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल है x की स्क्वायर रूट x है, स्क्वायर रूट x है, इट मीन्स अपन क्या राइट कर सकते हैं? x पावर 1/2। स्क्वायर रूट को क्या राइट कर सकते हैं? x पावर 1/2 और 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट 1/x plus 3, 1/x plus 3, it means we can write x power minus 1 plus 3, x power minus 1 plus 3। यहाँ पे जो ये x है डिनोमीटर में है, आप इसको न्यूमिनेटर में राइट करोगे तो x की पावर क्या आएगी? -1 और ये 3 एज इट इज़। सो दिस इज़ नॉट पोलिनोमियल। दिस इज़ नॉट पोलिनोमियल। वाई? बिकॉज x हैव पावर नेगेटिव, x हैव negative power, x have negative power, so this is not polynomial. clear? तो आप बहुत easily कोई भी algebraic expression given है उसको आप देख के बता सकते हो कि ये polynomial है या नहीं है। polynomial of one variable, it means उस algebraic expression में only one variable होना चाहिए। clear? second, जो भी वेरिएबल है x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है। जो वेरिएबल है उसकी पावर ओनली वूल नंबर्स होनी चाहिए। वूल नंबर्स मीन्स उसकी पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर। क्लियर? नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी है? 1/2, फ्रैक्शन में है। इट मीन्स दिस इज नॉट पोलिनोमियल।
सेकेंड एग्जाम्पल अपन ने देखा 1/x+3, यहाँ पे x की पावर क्या है -1। अब ये जो -1 है ये वूल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल x की जो पावर है वो वूल नंबर हो सकती है, इंटीजर नहीं हो सकती। इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो वूल नंबर्स ही होंगे। सो x पावर -1+3 इज नॉट पोलिनोमियल। क्लियर? ओके। Now classification of polynomial. Classification of polynomial, first is monomial. First is monomial. Monomial. The polynomial the polynomial which have only one term, only one term is known as monomial. Examples: 2, 2x, 3x square, -4x power 5, 64x power 6. These all are the examples of monomial. These all are the examples of monomial. So the polynomial which have only one term, ऐसे polynomial जिनमें only one term होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। 2 वन टर्म है, 2x ये भी वन टर्म है, 3x स्क्वायर दिस इज आल्सो ए वन टर्म, -4x पावर 5 दिस इज आल्सो ए वन टर्म, 64x पावर 6 दिस इज आल्सो ए वन टर्म। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में ये आ रहा है कि 64 अलग है, x पावर 6 अलग है। नो, टर्म ओनली वन ही है। ये प्रोडक्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 64 है। 64 क्या है? कांस्टेंट, और x पावर 6 क्या है? वेरिएबल। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इट मीन्स दिस इज ओनली सिंगल टर्म। तो टर्म्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? टर्म्स वेरिएबल और कांस्टेंट में मल्टीप्लाई साइन है या फिर डिवाइड साइन है, इट मीन्स वो सिंगल टर्म है। और प्लस और माइनस साइन है तो अपन टर्म्स को काउंट करेंगे। सपोज यहाँ पे 64 + x पावर 6, अब ये सिंगल टर्म नहीं है, ये टू टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 64, सेकेंड टर्म इज x पावर 6। क्लियर? सो the polynomial which have only one term is known as monomial. Is known as monomial. Monomial have only one term. Monomial have only one term. Then second is binomial. Second is binomial. The polynomial which have two terms. The polynomial which have two terms is known as binomial. So difference between monomial and binomial is monomial have only one term and binomial have two terms. Binomial have two terms. Examples: 2 + x square + 7, x cube + 2x. These all are the examples of binomial. The polynomial which have two terms is known as binomial. 2 + x, इसमें टू टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और सेकेंड टर्म क्या है? x. So this is binomial. X square + 7, this have also two terms, x square and 7. So this is also binomial. And third is x cube + 2x. इसमें भी कितनी टर्म्स हैं? टू टर्म्स हैं. So this is also example of binomial. So binomial have two terms. Binomial have
two terms. This is the second type of polynomial. Second type of polynomial. Then third type is trinomial. Third type is trinomial. The polynomial which have three terms. The polynomial which have three terms is known as trinomial. Is known as trinomial. Examples: x cube plus 2x plus 3, y square plus 2y plus 30. These are the some examples of trinomial. These are the some examples of trinomial. The polynomial which have three terms is known as trinomial. x square plus 2x plus 3, 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स हैं. ओके. y square plus 2y plus 3, this is also example of trinomial. Why? Because this have 3 terms. How many terms? 3 terms. Clear? So classification of polynomial according to number of terms. According to number of terms. इसमें अपन ने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अपन ने क्लासिफिकेशन किया है. क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट टाइप है ए, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे देखा अपन ने फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल्स मीन्स ओनली वन टर्म. सेकेंड बाइनोमियल. बाइनोमियल हैव 2 terms. एंड ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल हैव हाउ मेनी टर्म्स? 3 terms. क्लियर? सो दिस इज द classification according to number of terms. Classification according to number of terms. First is monomial, second is binomial, and third is trinomial. Monomial have only one term, binomial have 2 terms, and trinomial have 3 terms. Clear? Okay. Now second classification according to degree. According to degree of polynomial. According to degree of polynomial. First is linear polynomial. First is linear polynomial. According to degree of polynomial. Second classification is according to degree of polynomial. So first is linear polynomial. First is linear polynomial. The polynomial which have degree is 1. Which have degree is 1. The polynomial which have degree is 1 are known as linear polynomial. ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल्स, 2x 5x. द पोलिनोमियल विच हैव डिग्री इज 1. अभी जस्ट आपको मैंने डिग्री के बारे में बताया था. डिग्री इज द व्हाट डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. अदर एग्जाम्पल इज x plus 2.
दिस हैव डिग्री इज 1, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, पावर ऑफ x is 1, power of x is 1, power of x is 1. It means these are the examples of linear polynomial. These are the examples of linear polynomials. अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें 1 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं. क्या लीनियर पोलिनोमियल्स में 2 से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती? सपोज़ आपने राइट किया, x की पावर तो आप ज़्यादा ले नहीं सकते, आपने राइट कर दिया x + 2x + 5. क्या इसमें 3 टर्म्स हैं? नो, इसमें 3 टर्म्स नहीं हैं, 2 ही टर्म्स हैं. ये तो लाइक टर्म्स हैं, तो अपन इसको इस फॉर्म में राइट थोड़ी करेंगे. इसको राइट करेंगे 3x + 5. क्या राइट करेंगे? 3x + 5. और 3x + 5 इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. इट मीन्स जो भी लीनियर पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल हैव मैक्सिमम 2 टर्म्स. लीनियर पोलिनोमियल हैव मैक्सिमम 2 टर्म्स. कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है उसमें मिनिमम 1 टर्म होगी और मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगी. 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती. ओके, सो लीनियर पोलिनोमियल्स हैव मैक्सिमम 2 टर्म्स. एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म में अपन राइट कर सकते हैं p of x = ax + b. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल के एक जनरल फॉर्म, लीनियर पोलिनोमियल को अपन जनरल फॉर्म में राइट करें तो क्या राइट करेंगे? ax + b. इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं. a और b क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल. x इज द वेरिएबल, a and b आर कांस्टेंट. क्लियर? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू डिग्री, सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. Quadratic polynomial. The polynomial which have degree is 2. The polynomial which have degree is 2 is known as quadratic polynomial. So second type is quadratic polynomial. The polynomial which have degree is 2 is known as quadratic polynomial. ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 होती है उससे अपन क्या बोलेंगे? quadratic polynomial बोलेंगे. एग्जाम्पल, सपोज x² + 2x, x² + 2x + 3. These all are the examples of quadratic polynomial. Degree of x² is 2, degree of x² + 2x is also 2, and degree of x² + 2x + 3 is also 2. क्या आप मुझे इतना सा बता सकते हो? कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती. मिनिमम 1 टर्म हो सकती है और मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं. इट मीन्स जनरल फॉर्म इज p of x = ax² + bx + c. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. px = ax² + bx + c, where a, b and c are constant and x is the variable. So quadratic polynomial which have degree is 2. The polynomial which have degree is 2 is known as quadratic polynomial. Quadratic polynomial की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2 होगी. एंड लीनियर पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री है. तो फर्स्ट अपन ने देखा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री. एक लास्ट थर्ड टाइप है इसमें
First type is linear polynomial, second is quadratic polynomial, and third and last trinomial polynomial. The polynomial which have degree is 3. Sorry, this is cubic polynomial. Cubic polynomial. The polynomial which have degree is 3. डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. The polynomial which have degree is 3 is known as cubic polynomial. Cubic polynomials. For example, suppose x cube plus x square, x cube plus 3x square plus 2x minus 5. These all are the examples of cubic polynomial. Cubic polynomial. Okay. So what is cubic polynomial? The polynomial which have degree is 3. Degree is 3 is known as cubic polynomial. So this is the second classification. Second classification is according to degree. According to degree, first is linear polynomial. Linear polynomial have degree is 1. Linear polynomial have degree is 1, and linear polynomial have maximum number of terms are 2. Then second type is quadratic polynomial. Quadratic polynomial have degree is 2. How many? Degree is 2 and maximum number of terms are 3. Then third is cubic polynomial. Third is cubic polynomial. Cubic polynomial, the polynomial which have degree is 3 is known as cubic polynomial. Degree is 3. These are the examples of cubic polynomial. Cubic polynomial have maximum number of terms 4. Cubic polynomial have maximum number of terms how many? 4. So these are the classification of polynomials. Okay. So we study today first is definition of polynomial, then some basic definitions related to polynomials, then classification of polynomials. Classification of polynomials first is according to number of terms. According to number of terms, first monomial, second binomial, and third trinomial. Okay. And second type according to degree. According to degree, first linear polynomial, second quadratic polynomial, and third cubic polynomial. ओके. तो स्टूडेंट्स आज जो भी मैंने बेसिक थिंग्स बताई हैं पोलिनोमियल्स से रिलेटेड, ये कंप्लीट सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है. इसके बाद में जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स भी अरेंज करेंगे, और इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी डेफिनेशन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ व्हाट्सअप भी कर सकते हो. ओके, थैंक्स.